am here with numerical of electrostatics. It is mentioned on the board. So we will discuss numerical portion. Though numerical has no limit, okay, and it is that vehicle. ये वो vehicle है जिसको आपको drive करना है. न्यूमेरिकल कोई भी टीचर फुल्ली आपके माइंड में नहीं डाल सकता जब तक कि आप उसको ग्रैस्प नहीं करते और आप खुद से न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते. वी कैन ओनली सॉल्व at least 10 to 15 numericals or 20 numericals for many topics, but it is you those who have to solve the numerical by your own. जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. चाहे आप जितने न्यूमेरिकल देख लो, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. Solutions are given there, NCERT solutions are given, Erodo solutions are given, so solutions are given everywhere. You can see that solution, but it is you, so be confident before solving the numerical, and that is why I made one video related to numerical analysis. Basically it is for the introspection of yourself before solving numerical. It is the very important part. So we as a teacher can only push you to drive your vehicle of numerical. You are only the driver, okay? Remember this thing. It is the most important thing for you. So be confident, you can do. So here this I have written this numerical, and it is related to the initial part, that is charge and force. Electrostatic consists of electric charge, electric force, electric field, Gauss law, the torque, dipole moment, and application of Gauss law, and afterward potential, and then potential energy, then capacitance. So there are so many topics. Potential energy is related to so many topics. So numerical तो कहीं से भी बन सकता है, किसी भी टॉपिक को इंटरमिक्स करके बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा. ओके, सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू हियर. सबसे पहले तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो बेसिक जो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, बेसिक जो चाहिए वो है RWLS. व्हाट इज RWLS? I have discussed this thing too: reading, writing, listening and speaking. So ये 4 क्वालिटी तो हर एक स्टूडेंट में और हर एक पर्सन में भी होती है. हमारे में भी है ये क्वालिटी. रीडिंग होनी चाहिए, आप प्रॉपरली रीड कर रहे हो और थॉरली रीड कर रहे हो. राइटिंग, आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल में स्टेप्स क्या होने चाहिए, वी विल टेल यू. एंड आफ्टरवर्ड listening skill, that if you are in the live class, what is given live or online classes both, what is your focus related to that particular topic or that particular guidance, and speaking is your speaking. So means what, here the 3 skills are required: reading, writing and listening. So what you have to do, you have to follow the steps. First of all, concept. सबसे पहले आपको क्या है कि आपने अभी तक इतने टॉपिक पढ़ लिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कर सकते हो वो पोर्शन. आप देखो अगर इधर यहाँ पर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Gauss law, what is the application of Gauss law, how the Gauss law is applied, how the electric flux are applicable to different numericals. So before that you must know what are these things, what are the basic concept and properties of these particular topics in physics. तो कंसेप्ट तो सबसे पहले आपका क्लियर नहीं होना चाहिए. अगर नहीं क्लियर है तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ो. स्टिल यू हैव टाइम टू सी इट, व्हाट यू हैव टू डू, एनालाइज योरसेल्फ. ओके, सो कम टू द पॉइंट. जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग न्यूमेरिकल के स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि क्या पूछा जा रहा है. कंसेप्ट शुड बी क्लियर. फार्मूला अप्लाई करना, फार्मूला आप अप्लाई करते करते आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा. तो फार्मूला देख करके कर लो और माइंड में रखते जाओ, ठीक है. जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते जाओगे फार्मूला अपने आप ही आपको लर्न हो चुका होगा वो. देन थर्ड थिंग इज इमेजिनेशन. एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स इज, यू नो दैट इट इज़ द बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट. तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल देखते हो तो उसको ऐसे मत सॉल्व करना शुरू करोगे, न्यूमेरिकल की डेटा लिख लिए, फार्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया. दिस इज योर 11th and 12th क्लास. सो मीन्स व्हाट,
कि इवन 9th और 10th में भी ऐसे ही होता है कि जब आप कोई न्यूमेरिकल कर देखते हो तो उसको रीड करने के बाद उसको इमेजिन भी करो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। आप उसकी फिगर अगर ड्रॉ कर सकते हो फिगर ड्रॉ करो, माइंड में इमेजिन कर सकते हो माइंड में इमेजिन करो, बट उस न्यूमेरिकल को इमेजिन ज़रूर करो कि हो क्या रहा है। चार्ज अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये आपको इमेजिन करना है। तो क्या क्या हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दैट यू हैव टू इमेजिन। सो इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट हियर। एंड द फोर्थ इज द न्यूमेरिकल स्टेप एंड द यूनिट। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि स्टेप्स के बाद बच्चे आप न्यूमेरिकल के स्टेप्स लिखोगे, क्या क्या हो रहा है। स्टेप्स में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा लिखो, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया जाता है वो डेटा लिखो, जो भी पॉइंट्स दिए हुए न्यूमेरिकल के उसको लिख लो। उसके बाद आप उसमें फार्मूला अप्लाई करके, ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको इसके कैलकुलेशन पार्ट करना है, दैट इज़ अ कैलकुलेशन। एंड द लास्ट वन इज यूनिट जनरली स्किपेबल पार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि यूनिट नहीं लिखते या यूनिट कन्वर्जन नहीं करते। अगर स्टार्टिंग में डेटा लिखा हुआ है तो +1 के बच्चों ने हमेशा देखा होगा कि मैक्सिमम टॉपिक में यूनिट कन्वर्जन आता है। ओके, नाउ आई हैव रिटन वन न्यूमेरिकल हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस न्यूमेरिकल एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि चार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ फोर्स भी पूछा जा रहा है, तो चार्ज और फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है। सेकेंड थिंग इज फॉर्मूला। चार्ज से लिंक कौन कौन से फॉर्मूले, Q इज इक्वल टू NE, एंड फोर्स लिंक F इज इक्वल टू QE। E की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले को छोड़ो। आपको आना है फिर किसमें, कूलॉम्स लॉ फॉर्मूले पे। F इज इक्वल टू K Q1Q2 ओवर R²। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो सकता है क्योंकि चार्ज और फोर्स दोनों है, तो ये दो फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। और मे भी पॉसिबल कि इनमें से एक ही फार्मूले की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको ने इनिशियली माइंड में सेट कर लिया कि ये फार्मूला रिक्वायर्ड है। देन इमेजिन दिस सिचुएशन। अब ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको अपने माइंड में इमेजिन करो या तो फिगर ड्रॉ करो। सो आई एम ड्रॉइंग हियर फिगर फॉर यू। एंड फोर्थ वन इज स्टेप, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सो फोर्थ स्टेप आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि इमेजिन करो। थर्ड स्टेप यहाँ पे लिखा है दो चार्ज स्फीयर हैं, 2 चार्ज स्फीयर, ये दोनों स्फीयर हैं हैविंग चार्ज Q। लेट दिस स्फीयर इज A, दिस स्फीयर इज B, and they are kept d distance apart. Here it is mentioned that Q on each charge placed d distance apart. So the distance between the two charges d. Now an uncharged sphere comes in contact with the two sphere one by one. अब यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, दैट इज C, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हियर इनिशियली Q इज इक्वल टू 0। पहले ये जो C स्फीयर है ये इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 by 1, तो पहले A के कांटेक्ट में आया, देन उसके बाद ये B के कांटेक्ट में आया। तो पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। चार्जेस जो है वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, लाइक द केस ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज रिमेन सेम। ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है। सो द सेम यू आई टोल्ड इन थ्योरेटिकल पार्ट इन माई वीडियो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज कि उस व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट चार्ज वो हायर पोटेंशियल बॉडी से, अगर पॉजिटिव चार्ज है सो हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी इट विल बी ट्रांसफर्ड टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल का तो कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो कि चार्ज जो है ये चार्ज है जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, पहले आया A एंड C कॉन्टेक्ट में, तो C इज अ चार्ज बॉडी। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हियर इज Q एंड दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू बॉडीज। तो A पर चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज Q/2 हो गया। एंड व्हाट इज द चार्ज ओवर C बॉडी, दिस इज A बॉडी, दैट इज Q/2। Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, आप मीन वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। मीन कैसे निकालेंगे, लाइक मीन इज इक्वल टू Q + 0 डिवाइडेड बाई 2। इस पे 0 चार्ज था C पे, so Q + 0 divided by 2, that is Q/2. So mean charge is distributed over the 2 and the net charge remains the same, that is Q.
charge can neither be created nor destroyed. It can transfer from one body to another body. आपको पता ही है ना law of conservation of charge, तो वो यहाँ पे follow हो रहा है concept. Okay, so this is the charge now. Now C, after the interaction with A, C comes in contact with B. तो अब next step कर रहे हैं इसमें C and B interaction. Now C is having the charge Q by 2 now. It is now charge body, and B is having the charge Q. So what is the mean charge value? Total charge, that is Q plus Q by 2. So this is equal to 3Q by 2. This is the total charge. What is the mean charge value? Mean charge, that means what? 3Q by 2 divided by 2. So it will be 3Q by 4. That will be the mean charge. आप कैसे निकाल रहे होगे? Q plus Q by 2 divided by 2. That is the mean charge. Q1 Q2 over 2. दो bodies हैं. So this one is the mean charge. Now C carries the charge. This one 3Q by 4, and B carries the charge 3Q by 4. Okay. और उसके बाद वापस तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि C now again comes in contact with A. अगर ऐसा लिखा होता then we will solve again कि अब इस चार्ज के साथ में C जो है A के कांटेक्ट में आएगी तब कितना चार्ज रहेगा. तो यहाँ तक चार्ज फिनिश हो गया. आंसर कहाँ पर मिले? A का आंसर हो गया. So charge on A is what? Q by 2. Charge on C is 3Q by 4, and charge on B is 3Q by 4. So these are the answers. First answer, second answer, and third answer. These are the answers. Okay, so you will write here. You have to write in a statement of numerical that charge on A body is Q by 2, on the B sphere that is 3Q by 4, and on C sphere 3Q by 4. Okay, so this one is the first part of numerical. Now it is asked in the second part. In the second part, force concept is applied. यहाँ पर calculate charge on each sphere, ये first part solve हो गया यहाँ तक का, and find change in force between the two charge sphere. जो पहले charge थे उनके बीच में change in force पूछा है, ये निकाल गया कि distance change हुई है. So now A and B are the bodies and they are D distance apart. वैसे हमें center से लेना चाहिए. किसी भी अगर कोई भी body का कोई dimension है, उस body के center से we will calculate the distance. So this one is the D distance from the center of sphere A and B. Now A पे कितना charge आ गया था? Q by 2, and B पर that is 3Q by 4. So these are the charge value. Now we can calculate the force F dash. Second situation में force की value कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 over R square. तो result क्या आ जाएगा? K Q1 is Q by 2. Q2 is 3Q by 4 divided by R square, that is D square. ये तो सेकेंड सिचुएशन में जब चार्ज चेंज हो गए. फर्स्ट सिचुएशन में क्या था? पहले इस पे कितने चार्ज थे? बोथ आर हैविंग द सेम चार्ज वैल्यू Q एंड Q. सो व्हाट विल हैपन इन द इनिशियल पोर्शन? कैंसिल आउट हो गया. 5/8 into 100. You can solve this till the minimum value. So that means 125 divided by 2. So it is almost 62.5%. So that is the percentage change in force. Okay, got it? अगर ये आपसे पूछा जाता तो देखो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, लेकिन देखने में न्यूमेरिकल लग रहा था. इट इज़ डिफिकल्ट. तो आपको ही मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए बताया क्योंकि इसमें चार्ज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और फोर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. सो वी कैन सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट हियर. But for us, time is the limit. So I hope it is clear to you. Do you now solve some questions related to charge? Try it at home. And I'm going to solve one more numerical related to charge and force. So here I am with next numerical, question number 2. It is given on the board.
if it is not clearly visible, I can read it out. Two bodies A and B having the charge 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charge be placed so that it experience no net force? Okay, तो ये भी एक बहुत important type का numerical है. Again I'm saying it is your initial stage, important पे मत जाओ. अभी क्या करना है आपको, सारे numerical solve करने हैं. ठीक है, तो इजी और मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लोग सारे बच्चे सॉल्व करो, और कुछ डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ बच्चे छोड़ सकते हैं, कुछ बच्चे ट्राई भी कर सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन. ओके, कंसेप्ट आपको पता ही चल गया इसमें कि चार्ज का कंसेप्ट है और यहाँ पे फोर्स का कंसेप्ट लग रहा है. ठीक है, अगेन सेम कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल. उसके बाद क्या है आपका फार्मूला, फोर्स के लिए फार्मूला और चार्ज के लिए फार्मूला आपको पता ही है. ठीक है, यहाँ पर फिर हमने अप्लाई करना है इमेजिनेशन. सो हियर दैट A and B are the two charges which are fixed at separation 20. It is mentioned in the question. सेंटर से हम लेते हैं, अगर ये बॉडी टू बॉडीज हैं इनके सेंटर से ही हम लेंगे क्योंकि बॉडी का अपना कुछ भी डायमेंशन हो सकता है. सो दैट वी आर टेकिंग द डिस्टेंस D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन भी आएगा. ओके, सो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले देख लो 20 है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर. 0.20 मीटर सबसे पहले कन्वर्ट कर दो बिकॉज यू. तो इधर आपने यूनिट जो है वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ली क्योंकि आंसर फोर्स का न्यूटन में निकाल रहे हो आप. तो इतना पोर्शन दिया हुआ है. चार्जेस की वैल्यू लिख लो. Q1 8 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम और Q2 दैट इज इक्वल टू -2. चार्ज में साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्किप नहीं करना होता. तो -2 10 टू द पावर -6. अब अगर हमें ये इट इज आंसर द क्वेश्चन वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स. हम दो सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं. एक तो या तो चार्ज यहाँ पर होगा, कोई भी थर्ड चार्ज. ओके, अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो इस पर फोर्स देखो, पॉजिटिव के बेसिस पे फोर्स किधर लगेगा, इन दिस राइट डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज अप्लाइज द फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज, सो राइट डायरेक्शन. और नेगेटिव के बेसिस पे फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में. तो ये तो श्योर हो गया कि यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं होना, मिडिल के किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो नहीं होना है. अगर चार्जेस के साइन अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर नेगेटिव जो भी चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के साइड में फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज़ वाई अगर हम मिडिल में कहीं पॉइंट लेंगे या इन बिटवीन दिस डिस्टेंस D हम कोई भी पॉइंट चूज़ करेंगे सो नेट फोर्स कैन नॉट बी ज़ीरो. तो या तो हम इस डिस्टेंस के रेडियल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में ले लें या तो राइट साइड में ले लें, हमें वहाँ पर फोर्स की वैल्यू जीरो मिलेगी. तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस टाइप को बना लें कि ये इनिशियली तो ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस में आपने यहाँ पर कोई पॉइंट चूज़ किया जहाँ पर नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है. अब यहाँ पे चेक भी कर लो एक बार. व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस प्लस चार्ज, द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. For the minus charge, the direction is towards the charge, that is F minus. So F plus is towards plus x axis and minus F, that means minus force due to minus charge is towards minus x axis. तो obviously ये opposite direction में होने पर net force इसमें zero हो जाएगा. net force की condition क्या है कि it experience no net force, यानी कि net force zero हो जाना चाहिए. तो ये सिचुएशन यहाँ पर करेक्ट फिट हो रही है. इधर भी वही करेक्ट फिट हो जाती, बट हमने इस चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया है. ठीक है, और ऐसा आप हर केस में करोगे, किसी भी एक चार्ज को आपको ओरिजिन पे रखना ही है ऐसे न्यूमेरिकल में. तो अब आप क्या करोगे कि P पॉइंट लिया हुआ है, लेट अ Q चार्ज इज एट पॉइंट P. आपने ये फिगर ड्रॉ की, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इमेजिनेशन. सो यू आर इमेजिनिंग द स्टेटमेंट इन अ फिगर. सो दिस लेट Q चार्ज दैट इज एट पॉइंट P. तो अब इस पे फोर्स इक्वल है, नॉट इक्वल, ऑपोजिट है. इक्वल तो है नहीं क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है, चार्ज वेरी कर रही है, तो फोर्स इक्वल तो नहीं है. हाँ, यहाँ पर क्या हो सकता है कि डिस्टेंस वेरी करने पर यहाँ पर आपको नेट फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओवरऑल नेट फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जीरो हो जाए. सो फोर्स ड्यू टू प्लस चार्ज सबसे पहले निकालते हैं. के की वैल्यू आपको पता है, दैट इज
9 into 10 to the power 9. And formula for K is what? 1 over 4 pi epsilon naught. So K Q1 Q2 Q1 and Q2 आपने यहाँ पे P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रिज्यूम किया है? Q चार्ज. So Q1 into Q divided by distance between the charges. Now let this distance is x. P पॉइंट की सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस आपने ले ली x. So what is the total distance of Q1 charge from the Q? That is d plus x. This much whole square. Okay, so you will write it as k q1 q divided by d plus x यानी 0.2 plus x whole square. That is the formula. और f minus क्या होगा? That is equal to k q2 q divided by what is the distance here? x square. माइनस से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस x स्क्वायर. सो दैट इज k, ये सेम रहेगा एज सच Q2 Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. अब इन दोनों को अगर आप इक्वल रख दो तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएंगे? नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो यहाँ आप क्या करोगे? F प्लस इज इक्वल टू F माइनस. एक ये बॉडी है, इसको दोनों साइड से बराबर फोर्स से खींचो, क्या होगा? बॉडी स्टेबल रहेगी, ना इधर राइट साइड शिफ्ट होगी ना लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी. तो सेम इज द सिचुएशन, दोनों फोर्स को आप इक्वल कर रहे हो. इक्वेटिंग दीज टू टर्म्स, तो आप क्या करोगे? k q1 q डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k q2 q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. मेरा मेथड हमेशा ये रहता है कि मैं पहले वैल्यू पुट नहीं करती, क्योंकि वैल्यूज बड़ी बड़ी दी होती हैं. जहाँ तक पॉसिबल है वैल्यूज पुट मत करो, नोटेशन के फॉर्म में रखो. मे भी पॉसिबल कई सारे नोटेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं. एक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में बच्चों को कि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं एंड लास्ट आंसर वो रॉन्ग आ जाता है. तो कैलकुलेशन में मिस्टेक से बचने के लिए आपने क्या करना है? कैलकुलेशन बस एक ही बार करो, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है. अगर रिक्वायरमेंट है कि बीच में सॉल्व करके ही वैल्यू पुट करनी है तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन. बट इफ इट इज़ पॉसिबल कि आपने लास्ट में रिजल्ट निकालना है तो सारे स्टेप्स कर लो, नोटेशन के फॉर्म में रखो और लास्ट में वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालो. सो के एंड के कैंसिल आउट. अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. क्यू एंड क्यू कैंसिल आउट. Q1 Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में और x की वैल्यू आपने निकालनी है. सो वी कैन सॉल्व इट. सो Q1 इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. आपने फिगर में मेंशन किया हुआ था 0.2 प्लस x होल स्क्वायर एंड दिस Q2 इज -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. अभी जो फॉर्मूला फोर्स का होता है इसमें माइनस साइन पुट नहीं करते. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी चार्ज का साइन पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी इसलिए चार्ज का साइन पुट करते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है. तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन की बेसिस पर ही लिखते हैं. तो यहाँ पे इस चार्ज का माइनस साइन यूज नहीं करना है क्योंकि हमने फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज -2 10 टू द पावर -6 ओवर x स्क्वायर. हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड दिस इज ओनली द सिंगल अननोन टर्म. तो जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं यहाँ कैंसिल कर दो. 2 4 8. ज़्यादातर इस क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स दिए हुए होते हैं आपके. ऐसा नहीं है कि वॉट एवर क्वेश्चन आर आस्क्ड टू यू वेदर इट इज़ इन बोर्ड एग्जामिनेशन और इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और इन होम एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत डिफिकल्ट हर समय दिया जाता है. आपके पास न्यूमेरिकल के डेटा ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन करना आपके लिए ईजी होता है. अब यहाँ पर आपका जो ये 4 आया है दैट कम्स इन स्क्वायरिंग, तो वो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. कैसे करोगे? 4 मीन्स व्हाट? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस x, इसका भी स्क्वायर था तो मैंने ओवरऑल में स्क्वायर कर दिया. 4 था, 4 इज 2 स्क्वायर और नीचे 2.2 प्लस x इसका स्क्वायर था तो होल में स्क्वायर हो गया. आंसर यही आएगा. उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर x होल स्क्वायर. ये करने से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो गई. आपने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायरिंग है तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. इट मीन्स a इज इक्वल टू b. आप अंदर के टर्म्स को ले लेते हो. सो सेम इज द टर्म हियर. 2 ओवर 0.2 प्लस x इज इक्वल टू 1 ओवर x. आपने क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ अगर आप स्क्वायरिंग से सॉल्व करते इट विल टेक टाइम. एक आंसर आपका प्लस में माइनस में आ सकता था तो इट विल टेक टाइम. सो बेटर टू गेट इन सिंपल वे. दैट इज व्हाई माई मोटो इज व्हाट? लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे. ओके, simple way of learning physics, that is only the motto, my motto.
and I know that you can, after some time, after class 12th, if you will go through with these videos, so after 12 you will say this thing that physics is easy. So this is the simple way of learning physics. 0.2 plus x. Take the term 2x minus x is equal to 0.2. So that is your answer. 0.2 meter, because initially we have taken the distance as meter. So x value is 0.2, means the charge, the q unknown charge is placed at point P at distance 0.2 meter. That means double distance from plus charge and 0.2 meter distance from the minus charge. So you will write in answer that the charge should be placed at point P at distance 0.4. 0.2 plus 0.2 is, it is 0.4. 0.4 distance from plus q charge, or minus 0.2 distance from minus q charge. Okay, you have to write the position. आप किस चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन ये निकाल रहे हो. So that is the value of x here, and it is answered in the question. So that it experiences no net force, you have solved it. So you have identified this position. So I hope that both of the numericals are clear to you, and you can ask query, and next time I will take some numericals of force and electric field.